Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about new education policy MCQ. Okay, ये higher education और teaching aptitude दोनों का important part है. So let's get started without wasting any time. Okay, so guys, if you want to follow me, you can follow me at Unacademy. ठीक है जी, Unacademy पर मेरा नाम है अलीशा महाजन एंड मैं कॉमर्स और पेपर वन की प्रिपरेशन करवाती हूँ. यू कैन फॉलो मी एट इंस्टाग्राम एज वेल. द आईडी इज alisha6269 and those who want to talk to me regarding MCQs or regarding your syllabus or regarding practice, ठीक है ना, you can call me at 8, not call, actually WhatsApp me at 80 544 81573. Okay, I'm repeating the number 80 544 81573. Let me write it down so that those who want to write they can. So let's get started without wasting any time. Okay. First question for the children: dash access to free, safe, high quality ECEE at आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका कौन सी एज के होंगे? ऑप्शन नंबर ए 3 to 6, 2 6 to 9, 3 9 to 12, 4 all of the above. Answer to this question is, guys, option number 1 3 to 6. Second one, prior to the age of dash every child will move to preparatory class or bal vatika, that is before class 1. कौन सी एज के पहले हर कोई चाइल्ड प्रेपरेटरी क्लास और बाल वाटिका में एंटर कर सकता है? 3 4 5 6. आंसर इज 5. ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं. You need to give me the full form of NCPFECE. Full form of NCPFECE. देखो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. जैसे यहाँ पे करिकुलर है या करिकुलम है या करिकुलर है या करिकुलर है. ओके, अनदर डिफरेंस here is that यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ पर एजुकेशनल है, यहाँ पर भी एजुकेशन है, एंड यहाँ पर पैडागॉजिकल एवरीथिंग इज, यहाँ पर पैडागॉगी है. समझ रहे हो? इट्स नथिंग लाइक कि सब ऑप्शन सेम है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर 1. ठीक है जी. नेशनल करिकुलर एंड पैडागॉगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए करिकुलम बना है. It comprises of alphabets, language, number, countries, color, shape, indoor and outdoor play, puzzles, logical thinking, problem solving, drawing, painting, and other visual art, craft, drama, puppetry. Puppetry. Puppet show होता है ना, music, movement. NCPFECE, School Preparation Module, Research and Best Practice, Multifaceted Framework. It is option number 4. इट कम्स अंडर कि मल्टीफेसेटेड है ना, कि बाकी सारे काम भी आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब लाइक लर्निंग. नॉर्मल लर्निंग तो करनी है, ये सारी चीजें भी सीखिए. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन, करिकुलम and pedagogy to be transformed by dash to promote skill based and minimize rote based learning. rote होता है cramming. cramming माने रट्टा लगाना, रट्टे से दूर. it would be कब तक? 2022. ऑप्शन नंबर 3. Revision of NCF for school education and NCF for teacher education 2009 by, मतलब कब रिवाइज हुआ ये? Because it is our option number 3. रिवाइज करना है 2021 तक. Achieve 100% gross enrollment ratio in the school education by 2020 तो चला गया. So the question is 2030.
स्कूल एजुकेशन 100% 2030. Vocational education integration from primary grade and a 10 days no bag internship with local grades craftsman for grades. Vocational education कब देंगे ये? It would be 6 to 8th class से ही. Full form of NPST. Again there will be some problem like यहाँ पर null, यहाँ पे professional, standard. 4. Teaching, teachers. So answer to this question is option number 2. National Professional Standards for Teachers. At least 50% of the learner exposed to vocational education in school and higher education. हायर एजुकेशन कब पर बात की है? पिछले क्वेश्चन में 2030 था और पर वहां पर हायर एजुकेशन नहीं था. सो दैट्स व्हाई ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है. वो 2030 तक का था एंड दिस क्वेश्चन इज 2025. अब पैंडेमिक के कारण पता नहीं कब क्या होता है, बट स्टिल वी कैन लर्न द फैक्ट्स. The adult education curriculum to include following types of program. Find the odd one out. Foundational literacy and numeracy, critical life skill, vocational skill development, basic education, continuing education. Answer is find the odd one out. Odd one out मतलब कौन सा नहीं है? It means सब है इसमें. It means आपको बेसिकली याद करना है कि अडल्ट एजुकेशन करिकुलम में कौन कौन से प्रोग्राम है. अडल्ट एजुकेशन में सब है. दिस. बेसिकली ये क्वेश्चन आपको 500 पॉइंट्स लर्न करवाने वाला था. इट इज लाइक अ ब्लू प्लूप क्वेश्चन. जब मेरे क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता, वो ब्लू प्लूप क्वेश्चन होता है. या तो सारे आंसर्स गलत है या तो सारे ठीक है. इस मामले में इस क्वेश्चन में सारे ठीक है, सारे पार्ट है, ऑड वन आउट कोई नहीं है. Which of the following is not the objective of Parak? Setting norms, standards and guidelines for assessment and evaluation, guiding the state achievement survey, not conducting the national achievement survey, monitoring achievement of learning outcome in the country. It is third. देखो नाम से ही है कि नॉट कंडक्टिंग. यहाँ पे नॉट नहीं आना, कंडक्टिंग आना. बाकी ये 3-4 ऑप्शन ठीक हो जाते हैं अगर हम नॉट को कट करते हैं. सो दैट्स व्हाई थर्ड इज रॉन्ग. Full form of PARAK. Performing assessment, review and analysis of knowledge for holistic program. Okay. दीजिए टाइम और मेरे को बताएं. चलिए, let me give you the answer. Answer is option number 4. Please learn it from your heart. Performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development. Just do that. Okay. The committee for preparation of, यहाँ पर ही नहीं द आ जाएगा. Draft of national education policies submit its reports to ministry on. सोचिए क्या होगा.
चलिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 31 मई 2019। अराउंड डैश लैक सजेशन ऑन ड्राफ्ट, कहते हैं जब नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी नई वाली, ओके, सो कितने स्टेक होल्डर्स थे इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के? दैट इज 2 lakh suggestions. How many times educational policy have been made? कितनी बार बन चुकी है? It's 3 times बन चुकी है. During 1968 education policy, who was the prime minister? It is none other than Indira Gandhi. Socio-economically disadvantaged group includes. देखिए क्या क्या आएगा. ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज किसको दी जा रही है? ऑप्शन नंबर 4 को. सारे याद कर लीजिए. ये सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर 4. जल्दी से लर्न कर लीजिए. टेक्स्ट बुक शुड बी with local content and flavor, international content, national content, all. याद रखें with local content, इसमें local content होना चाहिए. they are saying हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपको भी पता है 10+2 है. 10th करते हैं फिर +2 करते हैं. पर नई वाली में क्या कौन सा स्ट्रक्चर बोला गया है? देखें तो नई वाली में बोला गया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 3 3 4. हाउ कम? देखिए पहले 10 और +2 होता था. अब देखें 5 साल कैसे? 3 साल पहले आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका जिसे बोलते हैं, ओके. फिर उसके बाद 2 ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास 6 to 8. अगले 3 साल 3rd से 5th क्लास 8 से 11 साल के बच्चे करेंगे. फिर अगले 3 साल 6ठी से 8वीं. फिर अगले 4 साल 9 से 12, ओके. 14 से 18 वाले करेंगे. सो इन्हें लिख भी लीजिए. इन्हें बोलते हैं पहले वाले को फाउंडेशन, देन प्रेपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी. लर्न इट आउट. सो आई होप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको अच्छे से रिवाइज हो रही है. देखें यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE फुल फॉर्म करें. फाउंडेशन में क्या करेंगे? अभी जो आपको समझाया. प्रेपरेशन मल्टी फेसिटेड होना चाहिए, मतलब प्ले वगैरह भी हो. कौन कौन इन्हें कैरिड आउट करेगा? HRD, WCD, HFW, ट्राइबल अफेयर्स. प्रिंसिपल्स देखिए. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब सबको इक्वल रखे. डाइवर्सिटी अलग अलग चीजों की, रिलीजन की एक मतलब रिस्पेक्ट करे. और लोकल कंटेंट को फेवर किया गया. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्फसाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज होने चाहिए. यूनिक कैपेबिलिटीज हर किसी के अंदर है, उसको जाने. क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग करके कॉन्टिन्यूस रिव्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. करिकुलम में रिडक्शन कीजिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन डालें. कोर एसेंशियल,
मतलब करिकुलम कहते हैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही करो, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग को करो कि बच्चे सोचें, दिमाग लगाएं, इंटरेक्टिव क्लासेस हो, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोर करें आगे, कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज। करिकुलम एंड पेडागोगी टू ट्रांसफॉर्म बाय 2022 एंड मिनिमम रॉड बेस ये आपको करवाई है, और एनएफसी भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा था अभी 2019 से 2021। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप you have learned a lot. Thank you so much guys, see you in the next class.